Hello everyone, welcome to English with Lakshmi. Friends, in this video we are going to cover line by line explanation of the very first chapter, A Letter to God, from First Flight class 10th. So, this chapter's writer is Z.L. Fuentes. In this chapter, Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. Asking for 100 paisas, does Lancho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. You know, बिफोर यू रीड में कुछ दिया हुआ है. ये कह रहा है कि लैंचो क्या है, एक फार्मर है और वो गॉड को लेटर राइट करता है क्योंकि उसकी जो क्रॉप्स होती है ना, तो वो बारिश की वजह से वो क्रॉप्स उसकी ख़राब हो जाती हैं. तो वो गॉड को लेटर लिखता है कि गॉड, मेरा इस साल फसल बहुत ख़राब हो गया है और मुझे 100 पैसे की ज़रूरत है. तो क्या गॉड उसको पैसे भेजते हैं? और ये लैंचो के ट्रस्ट की बात की गई है इस चैप्टर में कि वो दिखाता है कि लैंचो को इतना भरोसा होता है गॉड पे कि इस साल फसल ख़राब हो गई है, अगर कोई मुझे बचा सकता है तो वो बस गॉड ही बचा सकते हैं. तो वो लेटर लिखता है. तो क्या उसको पैसे मिलते हैं और वो पैसे कौन सेंड करता है? चलिए आगे के चैप्टर्स में देखते हैं. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The house was situated on the top of the hill. The hill was not very high. It was the only house in that area. From the house, one could see the river and the field of ripe corn. The field had flowers of corn also. It was an indication that crop was good this time. जो हाउस था वो सिचुएटेड था टॉप ऑफ द हिल, मतलब पहाड़ी के ऊपर वो हिल सिचुएटेड था और वो जो हिल था ना वो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं था. उस एरिया का वो सिंगल ही घर था और उस घर से कोई भी चारों तरफ देख सकता था कि चारों तरफ एकदम हरियाली और चारों तरफ क्रॉप्स हैं, जो पके हुए अनाज हैं. जो फील्ड था ना, ये क्रॉप्स का खेत जो था वो पूरा ये फ्लावर से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था, मतलब ये इंडिकेशन ही था कि बहुत अच्छी फसल दिख रही थी कि इस साल बहुत अच्छा फसल होने वाला है. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout morning, Lancho, he knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. The earth needed rain or at least a small amount of rain for a good crop. Lancho, the owner of the fields, he knew everything about his field. Since morning, Lancho had been looking at the sky in the northeast direction. फसल बहुत अच्छी दिख रही थी, फ्लावर्स लगे हुए थे, तो बस उन फ्लावर्स को, उन पौधों को बस एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन की ज़रूरत थी, थोड़ी कम बारिश की ज़रूरत थी. लेंचो वो जो फील्ड्स थे उनका ऑनर था, वो अपने फील्ड्स को ना बहुत अच्छे से जानता था, अपने खेतों के बारे में हर एक चीज़ उसको पता थी. तो क्या था, उस दिन वो सुबह से ही नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन था उधर देख रहा था, यानी कि उसको कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि बारिश हो सकती है, क्योंकि उसको पता था उसके खेतों को बारिश की अब ज़रूरत है. तो वो सोच रहा था कि बारिश आ जाए और उस डायरेक्शन में वो देख रहा था. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, good, God willing." The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." Lancho tells to a woman, who was his wife of course, that now they will surely get some rains. The woman replied that by the God grace of it would surely happen. The woman was preparing dinner. The elder boys were working in the field. Younger boys were playing near the house. The woman called them for dinner and all of them came to the house. लेंचो अपनी वाइफ से कहता है कि श्योरली, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा होता है, फील्ड्स को भी बहुत अच्छे से जानता है और इतने दिन में उसको वेदर वगैरह का भी काफ़ी मतलब समझ होती है उसको.
तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि हम डेफिनेटली बारिश होने वाली है। तो उसकी वाइफ कहती है कि हाँ ऐसा ज़रूर होगा, भगवान की कृपा से ऐसा होगा ज़रूर। और वो वुमेन क्या कर रही होती है, डिनर प्रिपेयर कर रही होती है। और उसके जो बड़े बच्चे होते हैं ना, जो एल्डर बॉयज़ होते हैं, तो वो फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं घर के आसपास में खेल रहे होते हैं। तो सारे लोगों को कहती है कि सारे लोग आओ डिनर के लिए। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. While they were having food, the big drops of rain started falling. This was exactly as predicted by Lencho. One could see large numbers of big clouds coming from northeast direction. The air was fresh and its smell was very nice. जब ये उसकी वाइफ फूड प्रिपेयर कर रही थी और सारे लोग उसके बाद से जैसे डिनर के लिए जब लेंचो की वाइफ बुलाती हैं, सारे लोग जब फूड मतलब खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे, तो क्या होता है बिग बिग ड्रॉप जो होते हैं रेन के वो गिरने लगते हैं। यानी कि बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदें होती है तो बारिश होने लगती है। और एग्जैक्टली जैसे कि लेंचो प्रिडिक्ट किया रहता है कि डेफिनेटली आज बारिश होने वाली है, तो वैसा ही होता है। कोई भी देख सकता था कि ये बहुत ज़्यादा बादल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे थे, यानी कि बादल लग रहे थे। जो एयर थी वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थी और जो स्मेल था ना वो बहुत ही अच्छा था। आप लोग ऐसा फील किए होंगे कि जब बहुत बादल लग जाते हैं गर्मी के बाद और वो जब बारिश जस्ट आने से पहले या फिर बारिश की जब बूंदें ज़मीन पे पड़ती हैं तो वो बहुत अच्छी स्मेल होती है उसकी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." Lencho went outside to feel joy of rain falling on his body. He returned and spoke with lot of happiness. These are not the drops of water. They are the new coins. The big drops are 10-cent coins and small drops are 5-cent coins. लेंचो जब देखता है कि बारिश आ रही है तो बस वो बाहर बारिश को फील करने के लिए जाता है, वो खुशी फील करने के लिए जाता है कि बारिश की बूंदें उसकी बॉडी पे पड़े। और जब वो आता है ना तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश रहता है और कहता है कि ये बारिश नहीं हो रही है, ये बस बारिश की बूंदें नहीं है, ये कॉइन बरस रहा है। जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट वाले कॉइन हैं और जो छोटे ड्रॉप्स हैं बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट कॉइन्स हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. He was very much satisfied to look at his field of ripe corn and flowers. These were covered by rain falling on the field. Suddenly, speed of wind increased, and along with rains, hailstones started falling. These were of white color and were shining like new silver coins. The boys went outside into the rain to collect hailstone. The hailstone looked like pearls. जब ये जो लेंचो है वो फील्ड में जब मतलब बाहर निकलता है, बारिश को फील करता है, आता है, कहता है, उनका कंपेयर पैसे से करता है। फिर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वो सेटिस्फाई होता है अपने फ्लावर्स को देख के, जो उसके कॉर्न, उसका जो फसल रहती है उसमें जो फ्लावर्स वगैरह रहते हैं, तो वो सोचता है बस बारिश की ज़रूरत थी, बारिश भी आ गई, तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। और क्या होता है कि मतलब ये बारिश तो हो ही रही थी, सडनली क्या होता है विंड की जो स्पीड होती है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। और आप लोगों को पता है जब बहुत ज़्यादा बारिश पूरा नमी नमी हो गया रहता है, अगर उसमें हवा चल जाए तो सारी फसल गिर जाती हैं। तो अभी तो हवा की स्पीड इंक्रीज हुई और उसी के साथ ना ये स्टोन पत्थर वगैरह भी पड़ने लगे। वाइट कलर के जो पड़ते हैं, तो आप लोग देखे होंगे। तो ये वाइट कलर के ऐसे थे जैसे कि सिल्वर कॉइन गिर रहे हों। तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत खुश हो जाते हैं, जाते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए। ये क्योंकि वो जो हेल स्टोन्स है ना, तो वो पर्ल्स, मोती की तरह दिख भी रहे होते हैं, तो बच्चे जाते हैं एक्साइटेड होकर उसको कलेक्ट करने के लिए।
It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. But it did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Lancho spoke with sadness that the rains with hailstone is bad for the crop. He wished that it stopped very soon, but it did not stop quickly. It rained hailstone for 1 hour. It rained everywhere. The field had become white as if salt had been spread on the field. अब जब पहले तो बारिश हो रही थी, लंचो को बड़ा अच्छा लगा. फिर उसके बाद विंड की स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई और हेल स्टोन पड़ने लगे. अब जब हेल स्टोन लंचो देखता है तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है. वो कहता है कि आई होप ये जल्दी मतलब बंद हो जाए, क्योंकि ये क्रॉप जो है ना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत बैड है क्रॉप्स के लिए. वो सोचता है कि जल्दी से ये स्टॉप हो जाए ताकि कुछ क्रॉप्स बच जाए, लेकिन वो जल्दी से स्टॉप नहीं होता है. हेल स्टोन होते मतलब गिरते रहता है. और जो बारिश है ना, तो मतलब लगभग ये हेल स्टोन वाली बारिश लगभग 1 घंटे तक होती है और चारों तरफ मतलब होती है, चाहे वो वैली थी चाहे वो क्रॉप था, मतलब चारों तरफ पूरा होल वैली को वो कवर कर लेता है. ऐसे लगता है कि सारे फील्ड में जैसे साल्ट पूरा गिरा दिया जाए, सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, तो वैसे ही पूरा फील्ड एकदम वाइट हो जाता है स्टोन से. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. Every leaf from the trees has fallen on ground. All the corn was completely destroyed. All the flowers had fallen on the ground. Lencho was now full of sadness. जब इतने 1 घंटे तक जो हेल स्टोन वाली रेन हुई है, बारिश हुई है, तो कुछ भी नहीं बचता. जितने ट्री होते हैं ना, उनके जो भी पत्ते होते हैं सारे वो गिर चुके होते हैं ग्राउंड पे. जो कॉर्न होता है, जो फसल होती है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है. जो फ्लावर वगैरह होते हैं वो सभी ग्राउंड पे गिर चुके होते हैं. अब जो लैंचो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो चुका होता है. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. When the storm had stopped, Lancho went out of the house. He stood in the field and looked around. He told his sons that even a group of insects, which is where locust is mentioned, would not have damaged our crops so much. Because of hailstorm, everything has been destroyed. This year, we will not be any corn for us. क्या होता है कि जब स्टॉर्म स्टॉप हो जाता है, ये जो तूफान आ रहा होता है ये सब बंद हो जाता है, तो लेंचो घर से बाहर जाता है, फील्ड के बीच में खड़ा होता है, चारों तरफ देखता है और अपने बच्चों से कहता है कि अगर लोकस्ट का अटैक भी हुआ रहता ना तो भी कुछ ना कुछ क्रॉप बच जाती, वो भी खाते तो पूरा कंप्लीटली खराब नहीं कर देते हमारी फसल को, कुछ तो बच जाता. लेकिन ये जो हेल स्टॉर्म था इसने सब कुछ ही बर्बाद कर दिया है और इस साल हम लोग के पास कोई क्रॉप बचेगी ही नहीं. The night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. That night was full of sadness for them. Lancho said, all our work has become a wastage. Nobody can help us now. We will be hungry this year. ये जो रात थी ना, जब ये पूरा हेल स्टॉर्म पूरा पड़ चुका था, इनका पूरा फसल डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो इन लोगों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा सैड मोमेंट था. वो रात बहुत ही ज़्यादा सैडनेस से भरी हुई थी. लेंचो क्या कहता है कि कहता है जितनी भी हम लोग मेहनत किए हुए थे ना सब बर्बाद हो गया, अब हमारी मदद कोई नहीं कर सकता है, इस साल तो हम भूखे मर जाएंगे. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Everybody living in that only house of the valley had one hope. They thought that God would surely help
हेल्प देम। अब इन लोगों की फसल सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा ये लोग सैड थे। और लेंचो कहता है कि इस साल अब हम लोग भूखे रह जाएंगे। तो फिर उसके बाद से जितने लोग भी मतलब उस फैमिली मेम्बर जो भी लेंचो के होते हैं, तो सारे लोगों के मन में बस एक ही सिंगल होप रहती है कि हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि गॉड ही इन लोगों को बचा सकते हैं, अब वही हेल्प कर सकते हैं। Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. His wife told Lancho not to be so worried, although the crop was completely destroyed. She told him to remember that no one dies because of hunger. Lancho replied that people say that nobody dies because of hunger. सब ये कहते हैं लोग कि साल हम लोग भूखे मर जाएंगे, सारे लोगों को बस एक ही होप रहता है कि गॉड से हेल्प। तो लेंचो की जो वाइफ है वो कहती है कि मतलब बहुत ज़्यादा वरी मत करो, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। हालांकि हम लोग के जितने भी क्रॉप्स थी सब डिस्ट्रॉय हो गई हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। और लेंचो कहता है हाँ, लोग यही कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of the god, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Throughout the night, Lencho thought about the help of the god. It was his only hope. He had been told that God can see everything. God can also see what is in the mind and heart of everyone. पूरी रात जो लेंचो था ना, वो बस एक ही हेल्प के बारे में सोच रहा था कि गॉड की हेल्प, कि गॉड डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि गॉड ही उसकी सिंगल होप थे। और मतलब उसने ये चीज़ सुनी थी कि गॉड सब कुछ देख रहे हैं कि कौन इंसान क्या कर रहा है, अपने दिमाग में क्या सोच रहा है, क्या उसके लाइफ की सिचुएशंस है। ये सारी चीज़ें रात भर वो सोचता रहता है कि भगवान तो सब देख रहे हैं, तो वो मेरी हेल्प डेफिनेटली करेंगे। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. Lancho was very strong man. He used to work very hard in fields, but he knew how to write. Next Sunday morning, he started writing a letter. He thought that he would himself carry that letter to the town and send it by the post. लेंचो बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान था, बहुत मेहनत करता था अपने खेतों में, और उसको ना लिखना भी आता था। ये नहीं है कि वो फार्मर था तो इलिटरेट था या उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। नेक्स्ट संडे क्या करता है, मॉर्निंग में वो लेटर लिखना स्टार्ट करता है और सोचता है कि मैं खुद ही इस लेटर को कैरी करूँगा, मतलब लेके जाऊँगा और खुद ही पोस्ट करूँगा टाउन से। It was nothing less than a letter to God. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 paisas in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm. It was the letter to God. In his letter, he requested God to help him and his family. Otherwise, we will remain hungry this year. I need 100 paisas to put new seeds in my field and to live until the new crops comes because the hailstorm. वो जो लेटर लिख रहा होता है वो यही रहता है कि अ लेटर टू गॉड, वो गॉड को पत्र लिख रहा होता है और उसमें लिखता है कि भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पैसास की ज़रूरत है ताकि मैं अपना जो नया बीज है उसको बो सकूं, और जब तक नई क्रॉप तैयार नहीं हो जाती है तब तक हम लोग का मतलब ये जीवन जीने के लिए तब तक के लिए वो पैसे चाहिए, क्योंकि ये जो हेल स्टॉर्म था इसने हमारी फसलों को बर्बाद कर दिया है। तो पूरे साल का जो खर्चा है उसके लिए और नया बीज लगाने के लिए।
He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. He put that letter into an envelope and sealed it. He wrote to God on the envelope. He was still worried but went to the town. He pasted a stamp on the envelope एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द लेटर बॉक्स. क्या करता है वो जो लेंचो है, तो वो लेटर को क्या करता है, इन्वेलप में रखता है, लिफाफे में, और उसको सील कर देता है और उसके ऊपर लिख देता है टू गॉड, यानी कि ये लेटर गॉड के लिए है. और वो फिर भी मतलब अभी भी उसको क्या रहता है, उसको थोड़ा वरीड रहता है, तो टाउन जाता है और फिर उसके बाद से वहाँ पे स्टैम्प करता है और खुद ही लेटर जो बॉक्स रहता है उसमें उस लेटर को डालता है. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. One of the employees at the post office was a postman. He used to also do other works of the post office. He went to his boss, the postmaster. He was laughing a lot. He showed the letter to his boss. In his career as a postman, he did not know the address written on that envelope. क्या होता है जब वो जो एक एम्प्लॉय रहता है पोस्ट ऑफिस का, तो वो पोस्टमैन रहता है और वो पोस्ट ऑफिस का और भी दूसरे काम करता है. तो क्या जब उसको ये लेटर मिलता है तो वो अपने बॉस के पास लेके जाता है और हंसता है कि इतना दिन जो मेरे लाइफ का अभी तक का कैरियर था एज अ पोस्टमैन, तो मैंने आज तक कोई ऐसा एड्रेस नहीं देखा कि कोई लेटर गॉड के लिए हो, यानी कि गॉड का एड्रेस मुझे नहीं पता. आज तक कभी कोई ऐसा लेटर नहीं आया कि जिस पे गॉड का एड्रेस लिखा हो कि गॉड को ये लेटर डिलीवर करना है. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." The postmaster was fat and a friendly person. He also started laughing, but immediately he became serious. He started tapping the letter on his desk. He wondered at the faith of the person who had written that letter. He wished he also had such faith. He was surprised that the man was sending a letter to God. पोस्टमास्टर जो था, जैसे ये जो पोस्टमैन था वो लेटर पोस्टमास्टर के पास लेके जाता है, वो भी हंसने लगता है क्योंकि वो जो पोस्टमास्टर है वो फैट है और फ्रेंडली नेचर का पर्सन है, तो वो भी हंसने लगता है. लेकिन इमीडिएटली वो सीरियस हो जाता है और लेटर को ऐसे डेस्क पे टैप करते हुए कहता है कि मतलब उसको आश्चर्य होता है कि ऐसा फेथ गॉड में, कि मतलब लैंचो को विश्वास था कि गॉड उसकी मदद करेंगे. उसको बिल्कुल भी ऐसा कोई डाउट नहीं था कि हाँ गॉड के जगह पे कोई और मदद करे या फिर भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, ऐसा कुछ. उसको था कि मैंने गॉड से मांगा है तो गॉड मुझे डायरेक्टली वो पैसे देंगे. उसको बहुत ट्रस्ट रहता है गॉड पे. तो यही चीज़ जो पोस्ट मास्टर है ना, उसको बहुत वंडर हो जाता है, बहुत आश्चर्य वाली चीज़ लगती है. कहता है कि काश ऐसा फेथ मुझे भी रहता, और वो सरप्राइज हो जाता है कि ये पर्सन जिसने गॉड को ही लेटर लिखा है तो इसका गॉड में कितना ज़्यादा फेथ है. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea: answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. In order to keep the faith of the person in God, the postmaster thought of an idea. He wanted to write a reply to the letter, but when he read the letter, it became clear
to him he would need something in addition to paper, ink and kindness. जब पोस्ट मास्टर मतलब वो लेटर दिखता है उस पर टू गॉड लिखा रहता है तो उसको मतलब वो ट्रस्ट उसको काफ़ी अच्छा लगता है कि इसको इतना भरोसा है, तो सोचता है इस इंसान का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। उसके माइंड में एक आइडिया आता है पोस्ट मास्टर के माइंड में कि क्यों ना मैं इसका रिप्लाई करूं ताकि इसका जो ट्रस्ट है गॉड पर वो बना रहे, वो भरोसा ना टूटे। फिर जब वो लेटर को ओपन करता है, लेटर पढ़ता है, तो फिर पता चलता है कि बस लेटर का जवाब देने के लिए बस पेपर, इंक और दया की ज़रूरत नहीं है, कुछ और भी चीज़ें हैं जिससे उसका भरोसा बनाया जा सकता है, क्योंकि बस एक लेटर का रिप्लाई राइट करके नहीं करना था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. But he maintained his decision. He asked money from his colleagues. He also gave a portion of his salary. Many of his friends agreed to donate money to help the farmer. जब ये डिसाइड करता है रिप्लाई करने का, ओपन करता है, तो उसमें तो लेंचो लिखा रहता है कि उसको पैसे की ज़रूरत है। फिर ये देखता है तो सोचता है कि बस पेपर, इंक और दया की ज़रूरत नहीं है, इसका रिप्लाई करने के लिए तो पैसे की ज़रूरत है। फिर भी वो अपने डिसीजन पे टिका रहता है, वो जो पोस्ट मास्टर रहता है कि हाँ मैं हेल्प करूँगा उसकी। तो क्या करता है, अपने कलीग से भी हेल्प मांगता है और अपने सैलरी का कुछ पोर्शन भी खुद भी मतलब वो डोनेट करता है, खुद भी देता है। और बहुत सारे जो उसके फ्रेंड्स रहते हैं, कलीग्स रहते हैं, तो फार्मर की हेल्प करने के लिए वो लोग भी एग्री हो जाते हैं। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature God. It was not possible for the postmaster to collect 100 pesos. He could collect slightly more than half of 100 pesos. He put that money in an envelope and he wrote the address of Lancho on the envelope. Also put a letter in the envelope. This letter had one single word, God, written on it. This word was written as signature. जो पोस्ट मास्टर था तो उसके लिए खुद से ही 100 जो पैसे थे वो कलेक्ट करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। वो बस हाफ से थोड़ा ज़्यादा कलेक्ट कर पाता है और क्या करता है, उन पैसों को इन्वेलप में रखता है और लेंचो का एड्रेस लिखता है और फिर उसमें एक लेटर भी होता है जिस पे एक सिंगल वर्ड लिखा होता है गॉड। ये वर्ड मेंशन कर रहा होता है कि मतलब सिग्नेचर एज गॉड। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Next Sunday, Lancho came slightly early to the post office. He asked if there was any letter for him. The postmaster himself gave the letter to Lancho. The postmaster was looking at Lancho from his office. The postmaster had the satisfaction of a person who had done some good work. क्या होता है कि अगला जो संडे रहता है तो लेंचो थोड़ा सा पहले जाता है पोस्ट ऑफिस पर और जाकर पूछता है कि मतलब क्या मेरे लिए कोई लेटर है। तो वो जो पोस्टमैन रहता है तो वो खुद ही वो लेटर लेंचो को देता है, जबकि जो पोस्ट मास्टर रहता है ना तो उसको बहुत सेटिस्फैक्शन फील होता है कि उसने मतलब कुछ अच्छा चीज़ किया है, वो अपनी ऑफिस से इस चीज़ को देख रहा होता है। Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. But God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. Lancho was not at all surprised to see money in the envelope because he had confidence in God. But he became angry after counting money.
He thought that God cannot make any mistake, and God cannot refuse what Lencho had requested. लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है अपने लेटर का रिप्लाई देख के, क्योंकि उसको गॉड पे पूरा ट्रस्ट था कि हाँ गॉड उसको पैसे सेंड करेंगे। लेकिन जब वो इन्वेलप ओपन करता है और पैसे काउंट करता है, तब वो एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कुछ पैसे तो ऑलरेडी, जैसे आप लोग पहले ही पता है कि हाँ पैसे कम रहते हैं, क्योंकि वो जो पोस्ट मास्टर रहता है उतना पैसे कलेक्ट नहीं कर पाया रहता है, तो हाफ से थोड़े अधिक रहते हैं। तो जब लेंचो पैसे काउंट करता है ना, तो वो गुस्सा हो जाता है, कहता है गॉड से कोई गलती नहीं हो सकती और ना ही मैंने जो रिक्वेस्ट किया था उसको वो मना कर सकता। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. Immediately, Lencho went to window of the post office and asked for a paper and a pen. And there was a table in the post office where everybody could write. He went to that table and started writing. He was making lot of effort in writing his thoughts on that paper. His eyebrows had folded because of the effort. क्या होता है कि लेंचो जब काउंट करता है उसको पैसे थोड़े कम लगते हैं तो वो थोड़ा गुस्सा होता है, कहता है गॉड से कोई गलती नहीं हो सकती और ना ही मैंने जो मांगा था वो उसके लिए रिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो इमीडिएटली क्या करता है, विंडो के पास जाता है पोस्ट ऑफिस के और वहाँ से पेपर और पेन मांगता है। फिर वो जो पब्लिक टेबल रहता है जहाँ पे कोई भी बैठ के कुछ लिख सकता है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पे जाता है और राइट करने लगता है। और मतलब अपनी जब राइटिंग स्टार्ट करता है ना, तो बहुत ज़्यादा अपनी उसकी जो थॉट होती है, कई बार हम लोग जो सोचते हैं तो हमारे फेस के एक्सप्रेशन से वो पता चलता है। तो जब वो राइट कर रहा होता है ना, तो उसकी आईब्रोज जो होती है ना, तो वो फोल्डिंग हो जाती है, यानी कि वो अपनी थॉट को ना एक्सप्रेस कर रहा होता है, तो फिर उसके फेस पे वो एक्सप्रेशन दिख रहा होता है। When he finished, he went to the window to buy a stamp and he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. When Lencho had completed writing letter, he went to the window to buy a stamp. He licked the stamp. He put the stamp on the envelope and applied blows of his fist to paste it. He put the envelope into the letter box immediately. The postmaster took the letter out and opened it. एक्चुअली जब लेंचो अपना राइटिंग कंप्लीट कर लेता है तो विंडो के पास जाता है स्टैम्प बाई करने के लिए। उसके बाद स्टैम्प को लिक करता है और फिर क्या करता है, इन्वेलप को मतलब वो जो मुट्ठी होता है उससे ऐसे अप्लाई करके उसको पेस्ट कर देता है। फिर उसके बाद जो इन्वेलप रहता है उसको लेटर बॉक्स में डाल देता है और पोस्ट मास्टर इमीडिएटली क्या करता है, उसको लेटर को ओपन। इट सेड, गॉड, of the money that I asked for, only 70 paisas reached me. Send me the rest, since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. Following where the written on the letter, God, from the money I had asked, I have received only 70 paisas. Please send me the remaining money because I need it very much. But please do not send through the post because people of post office are dishonest. The letter was signed by Lencho. क्या होता है, लेटर में क्या लिखा गया रहता है, लेटर में ये लिखा होता है, जब वो पोस्ट मास्टर लेटर को ओपन करता है तो उसमें लिखा रहता है कि भगवान, मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे उसमें मुझे बस 70 पैसे मिले हैं और कृपया जो बचे हुए पैसे हैं मुझे उनकी ज़रूरत है, तो आप काइंडली उनको सेंड कर दीजिए और इस बार पोस्ट के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस पे रहने वाले जो लोग हैं वो डिसऑनेस्ट हैं, मतलब वो सारे लोग बेईमान हैं। मुझे आप पर तो भरोसा है कि आपने वो पैसे मतलब पूरे ही भेजे होंगे, लेकिन इन्होंने वो पैसे ले लिए, इसीलिए मतलब आप मुझे इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा। फिर उसके बाद से एक सिग्नेचर था लेंचो। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को ये फुल चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।